हेलो, वेलकम बैक टू स्टॉक गुरु एनकेएस चैनल। मैं सुबह लाइव स्ट्रीम कर रहा था, बट देन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ब्रोकर सॉफ्टवेयर वाज नॉट सपोर्टिंग, सो बैक टू द लाइव मार्केट। एज प्रेडिक्टेड मार्केट बहुत वीक रही आज भी, और ये ट्रेंड तो अब ये नॉन स्टॉप रहेगा बहुत समय। एक बात आप समझ लो सब, दिस ट्रेंड इज गोइंग टू कैरी ऑन। सो एज एक्सपेक्टेड कोई सिर्फ एक होल्ड हुआ है। बैंक निफ्टी इज होल्डिंग एट 17,000 एरिया। बैंक निफ्टी जो है 17,000 के एरिया को होल्ड कर रहा है बेसिकली। समहाउ ट्रेडिंग व्यू में चार्ट्स फॉर्मेशन हो नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है। 11 फरवरी के बाद का दिख ही नहीं रहा। ओके, आ गया, सॉरी। तो इसने क्या किया है, बैंक निफ्टी ने 37,000 को होल्ड किया। बैंक निफ्टी का लो है 37,213। निफ्टी 17,000 लेवल तोड़ रहा है, विच इज वेरी नेगेटिव। अगर 17,000 लेवल टूटता है तो इट ब्रेक्स 51 lakhs का ओपन इंटरेस्ट। सो इट्स ए वीक मार्केट एंड रीजन सेम है, there is no change in the reason, just hold up है। इसका मतलब यही हो गया कि that सेकेंड हाफ भी गिरेगा ऐसा लग रहा है, बिकॉज एवरी डे गैप डाउन होने के चांसेस दिख रहे हैं अब तो। and the reason being the news market बहुत सेंसिटिव होता है। एवरी टाइम यू गेट सम नेगेटिव न्यूज, मार्केट प्लेज मोर ऑन दैट न्यूज। सो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से volatility is required, and whenever volatility is there you can earn in that market। सुबह मैंने हमेशा की तरह आपको एक लाइव ट्रेड करके डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया, which was a very very successful trade, extremely successful trade। and so please be very clear, market is weak, market weak होते हुए then 360 now, तो 17,300 put is the trade of, if you want to do immediately you should buy it here with a stop loss of let's say 345 and a target of around 400, because 17,000 has been broken. This one is the trade for you. 17,300 put. 17,300 put can be taken as a trade, as market has broken 17,000 level. This can be taken as a trade for a target of 400, because market will not give any reversal. $17,300 put. Anybody who is watching the stream can
can take 17,300 put to make money for a target of around 400. Look, 372. This I had given at 360. 360 के आसपास मैंने आपको ये बताया है, and already it is 12 points above that. So the target expected is 400 in this and even beyond. So use my knowledge for not only earning but learning, and join me to understand what exactly is trading. ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्लस ये होता है कि यू हैव टू जस्ट पुट इन फंड एंड टेक आउट फंड ऑन द सेम डे. इंट्राडे स्पेसिफिक ट्रेडिंग ऑफ इंडेक्स इज वेरी मच ए पॉसिबिलिटी टू अर्न द मनी. ये पॉसिबिलिटी है. सो दोज हु से नो, आई टोटली डिसएग्री विद देम. डू नॉट miss these opportunities of earning. जब market गिरता है, whenever there is a fall, there is extremely high chance to earn from trading. Whenever there is fall, there is very high successful possibility to earn. Look, 384. Look at the trade, boss. I cannot fail most of time. I am always successful, and I've given you a trade. It's already 20 points up. 20 points up, मतलब 1,000 rupees is already on. So you can very well learn what and how I do. So this is whatever I'm showing here is just a small trailer. I have abundant knowledge of index trading. मेरे को बहुत, I have a relentless experience in this. So it's like a left hand batting to me, if I may say. आप मेरे से जुड़ो. I have given you my WhatsApp number down there. Here you can get in touch with me through that, so I can give you a proper guidance, sort of a training, live market environment training. It will be a small internship training which will sharpen your skills or confidence. तो आप मेरे से जुड़िए. मेरा WhatsApp नंबर दिया हुआ है. I'm telling you, I have been in this for a very extensive deep down इसके अंदर मैं हूँ. I can pick the nerve of the market. मैं मार्केट की नस पकड़ सकता हूँ. आपको मेरे को भरोसा होना पड़ेगा और करे भरोसा. देखो, जब ये ट्रेड ऐसे हो जाता है, जब आपकी बाइंग वॉज समवेयर अराउंड 360, यू कैन नेवर लूज इन दिस ट्रेड. आप कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाना है. दैट्स इट. एंड हैव दैट पेशेंस, बिकॉज मार्केट में कोई भी रिवर्सल नहीं होने वाला है. And I'm very confidently saying this, market में कोई भी reversal नहीं होगा. There will be a very weak market. Every day one news or the other will be a negative news. And if a country like Russia has invested millions of rupees to bring its forces near the border or maybe inside some areas of Ukraine, it is not a temporary thing which it is doing now. Although in this century it is not advisable for Russia to do it because उसके ऊपर sanctions लगेंगे. मामला खत्म ही नहीं होगा. अब मामला तभी खत्म हो सकता है अगर रशिया जो कर रहा है वो करना बंद करे. क्रूड अभी देखिए वर्ल्ड मार्केट. लुक एट द वर्ल्ड मार्केट. दे आर स्टार्टेड ब्लीडिंग. एवरी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड इज डीप डाउन रेड. क्रूड ऑयल 94. So it's very clear. Bad days in terms of investors. Look at it. 4% ICICI Bank is down by 4%. SBI 4%. Single day 4% down. SBI, ICICI almost 3%. HDFC Bank down. 3% Axis Bank. These are 90%. 4% के आसपास Kotak is down. So these are 90% contributory. 37,000 is in danger now. 37,000 level danger is in danger. 37,000 level of Bank Nifty is in danger. आज one of the very easy day to earn through trading. I have done it in the morning. I have given you an example of how to do it. अभी भी अगर 37,000 break होता है, if it breaks, market is going to fall more towards 36,500, so which looks very much possible now.
बहुत बड़ा already 1300 points bank nifty has fallen, 400 point nifty has fallen, nifty is not able to maintain 17,000, bank nifty failed to maintain 38,000, then 37,500, now it is at trying to break even 37,000 level. पुट का ट्रेड लेके अर्निंग अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए इज वन ऑफ द बेस्ट पॉसिबल वेज इज ट्रेडिंग. सो दैट ट्रेड from 6 when I gave it was around 360 on and it went till 390 actually. So 30 points का वो ट्रेड था ये वाला. दिस वन 30 point is 1500 rupees on one lot. Okay, 50 का लॉट रहता है. And look at the bank nifty fall. Bank nifty started falling very very badly now. ये देखो आप 2 बजे जो गिरा है 2 बजे ये 37,300 से सीधा 200 पॉइंट गिरा है. तो यहाँ पर जो वीकनेस है वो मेंटेन्ड है, उसको कंटेन किया जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता है. दैट्स ए हार्ड रियलिटी. द रियलिटी है सो है, इट्स अ फैक्ट. देयर नो डिनायल अबाउट दैट. आज का जो दिन है स्टॉक स्पेसिफिक तो बिल्कुल नहीं है. जब एक फ्लैट फॉल होता है तो यू शुड ओनली एंड ओनली डू इंडेक्स ट्रेडिंग. ओके, जैसे कि मैंने बोला जब इट्स अ गैप, इट्स अ बैड डे, फ्लैट डे, लुक एट द वर्ल्ड मार्केट. अमेरिका इज ब्लीडिंग, यूरोप, डैक्स इज जर्मनी, कैक इज फ्रांस, एफटीएसई इज यूके. सो लुक एट द फॉल. 333% फॉल इज हैपनिंग देयर. 3% वहां दे दिया. एंड एशिया इज ऑल्सो वीक. China 2% down, Hang Seng 1.5. So this is what happens जब कुछ deep political geopolitical scenario होता है और 2%, 4%, 3%, so the entire market is at on a bleeding nosedive scenario. So you can see how the fall is going to increase only now. तो इस समय अगर आप ये देख सकते हैं कि 37,000 को होल्ड करने की कोशिश हो रही है बैंक निफ्टी की, बट इट looks like it will not be able to. अगर ये देखिए और जोर से फॉल आया है 385, the 37,300 put is again falling. As I told you, this may touch 400. So now in this case of bank nifty, what can be done? Well, broker software had been a real problem for me even in the morning. अभी तो नहीं है although. तो आपको ऐसे कैलकुलेट करना है. 37,300 की पुट इज ट्रेडिंग एट 521. ओपन 1 मिनट चार्ट ऑफ दैट. 1 मिनट का चार्ट देखिए 521. सो यू कैन इवन गो फॉर दिस. इसके एटीपी वैल्यूज आर सो लेस. एवरेज ट्रेडिंग प्राइस, द मिड पॉइंट वैल्यूज आर सो लेस. थिंग इज दैट it will not be able to hold itself much longer. And this can also go towards 600. ये 600 की तरफ जा सकता है. No, won't be surprising अगर जाए तो. फॉल एमिनेंट है. देखिए 535 हो गया है ये. This one can go to 400. For a trader, a falling market is blessing in disguise because he can easily make a lot of money. ये 530 के आसपास मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ, दिस कैन बी ट्राइड फॉर विद ए स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 35 पॉइंट्स एंड अ टारगेट ऑफ 70. यानी 600 का टारगेट, स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड 495. दिस कैन बी ट्राइड. दिस इज गोइंग टुवर्ड्स 400. निफ्टी नॉट होल्डिंग इटसेल्फ. My channel name is Stock Guru NKS. You can find it by just typing Stock Guru NKS. Whatever I am saying will reach you 10 seconds later. Okay, 10 second का difference will always be there. So which bank is falling more now? Well, every damn bank, every unfortunate bank is falling. 4% plus to fall is in SBI, Kotak, ICICI put together. The next big fall is in Axis, AU Bank, Indus. So these are all, ये 7 bank will contribute to 94% of the index in bank. Okay, so this is a 5-minute chart formation, 5 minute का chart formation time interval, and you can see after 2 o'clock the fall has increased suddenly. This is the final hour of the day, and look at this one 550. So if you recollect, I told you this one 400, it is done. 17,300 put has I suggested would touch 400, and it did touch 400.
एंड इट हैड नेवर टच 360 बैक. अगर आपने 360 का ऐसा लगा के भी बैठे होते तो यू वुड हैव नॉट लॉस्ट एनी डैम मनी. क्लियर कट फॉल, ब्लैंकेट फॉल है ये. दिस विल नॉट गोइंग टू होल्ड वेरी इजीली. एंड बैड लक ये है कि we are in the middle of a month. This will be disastrous. February will be a negative month. February returns will be extremely negative. Nifty जो है अपना try to see the Nifty chart. Yes, अगर इसके वन डे चार्ट पे आए तो मूविंग एवरेजेस में ये 200 डे मूविंग एवरेज को ले तो व्हाट इज मूविंग एवरेज? 200 दिन की क्लोजिंग का एवरेज. ओके, so that is coming around 16,763. That's a dangerous of, it is in danger of breaking that 200 DEMA. यानी 200 दिन की मूविंग एवरेज को तोड़ने की कोशिश हो जाएगी. तो इसके अभी अगर जो लोएस्ट लो थे बीच में थे 16,490, 490, 16,400 समझो. That was somewhere in December month. So every possibility of that happening now. The low of 17 December was 16,400. So we are going towards that direction. We are definitely going towards that side. So the 17,300, as I told you that time, it was around 500 and I think 60 odd when we started 40 points in this. So that's a 2,000 rupees for you per lot. This one I told you may touch around 700. This one ये वाला which शायद 600 भी टच कर सकता है. तो वो भी अपनी डायरेक्शन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है. On a 1 minute chart, market weakness is increasing more and more. 37,000 will surely going to get broken. Sorry. So keep an eye on what I say and how I do. So these are the levels. If 37,000 is broken, 19 lakhs का OI फूटेगा तो it will go straight towards 36,500. 500 पॉइंट और गिर सकते हैं. तो ऑलरेडी 1400 पॉइंट का फॉल है. We still have 1 hour left. World market non-supportive. All because of Russia. So all European stock future fall. Ukraine tension base. हर जगह there is no news. यूक्रेन टेंशन हर जगह पे है. एवरीवेयर इट इज ऑल. जियोपॉलिटिकल टेंशन पूरे वर्ल्ड के मार्केट हिल जाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर दैट. और वही हो रहा है. वैसे वर्ल्ड वाज ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम कोरोना एंड इट्स अ न्यू इशू. इज ऑल प्लान्ड बाय चाइना. If anybody wants to get an idea from me, it's all China plus Russia. This communist country will never allow the world to live in peace. मैं तो ये बोलूंगा. Look at the free fall happening now. बुरी तरह से गिरती हुई मार्केट. रिलेंटलेस फॉल. 2 बजे के बाद से देखिए उसने स्पीड पकड़ ली अपनी. बिकॉज ये यूरोप खुलता है इस समय. इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ये देखिए जो स्टीप फॉल है ना, दिस इज वेयर द अर्निंग अपॉर्चुनिटीज लाइज इन इंडेक्स. ये 414 हो गया. ये 360 वाली चीज 414. हर एक पॉइंट के 50 रुपए मिलते हैं आपको क्योंकि 50 का लॉट साइज है. एंड सिमिलरली इट अप्लाइज इन बैंक निफ्टी आल्सो, बट देन द लॉट साइज इज 25. वेल क्या कर सकते हैं. ये बैंक निफ्टी बिफोर दिस क्राइसिस आल्सो इट वाज ए. देखिए बैंक निफ्टी का 200 डे मूविंग एवरेज इज 36,400 समथिंग. ठीक है, 36,400. तो ये आज नहीं तो कल वहां की तरफ जा ही रहा है. सो इट इज अगेन गोइंग टू टेस्ट 34,000 का लेवल विच इज ए वेरी बैड साइन. तो आप ये देख लीजिए कि things have gone bad to worse since October 2021 onwards. उसके बाद से मार्केट kept falling only. 15-15 मिनट के इंटरवल्स में you can see, figure it out like this. ये 15-15 मिनट का क्लस्टर आप you can see this one.
That's a 15-minute cluster which gives you a much better idea about what is happening. आज का देख लीजिए ये सिनेरियो, a big gap down of 800 plus point. Every day there is a gap down and this is what is on going to happen. कल भी gap down होगा. मैं आपको बोल रहा हूँ कल बैंक निफ्टी का जो जनवरी का लो है वो टेस्ट हो जाएगा कल ही. So there is a very high possibility of tomorrow बैंक निफ्टी going toward 36,000. कल 36,000 की तरफ की तैयारी बैंक निफ्टी की है. बी वेरी 100% श्योर ऑन दिस वन. ये आप मान के चलना. पुट का ट्रेड लेके आप चांस ले सकते हो. थोड़े बहुत रिवर्सल आएंगे बट न्यूज जो है ओवरऑल तो नेगेटिव ही है ना. The sad part is the news would remain negative. There will be certain reversals, but then you are more or less safe in trades. अब आप निफ्टी के ट्रेड को अगर आप देख लिया, इसके केस में तो खैर मैंने आपको बता ही दिया था 560 would have been your कॉस्ट का सेल करके बैठ के यू कैन स्टे सेफ इन दिस. द अनसर्टेनिटी इज नॉट देयर. इट इज ए वीक मार्केट बट वीकनेस को कैप्चर करने का सिनेरियो यू शुड नो. लाइक 2 o'clock was a better time to put your money in, not now. अभी एक छोटा रिवर्सल हो रहा है. वी आर 215 बट स्टिल आई से एनी अपसाइड इज ए फॉल्स राइज, यानी नकली ऊंचा. उसको अगर हिंदी में बोल सकूं तो इफ करेक्ट मी इफ आई एम नॉट, इफ आई हैव डन अ मिस्टेक इन टेलिंग यू ऑन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज दैट वे. तो ये अब इतना गिरा हुआ है कि देयर आर पीपल हु गेट टेम्प्टेड टू बाई certain trades, especially mutual funds may be big houses may buy to average out. बहुत लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एवरेज आउट का कॉन्सेप्ट दिमाग में लगा रहे हैं कि अगर आपने कोई चीज 550 में ली और वो 500 के आप आसपास आ गए तो 500 में भी ले लो. यही हो रहा है बेसिकली. दिस इज ओनली हैपनिंग. अब यहाँ पे वही हुआ होगा, किसी ने तो बाई करी है, जब उसका बहुत ऊपर की तरफ से लॉस नीचे आया है तो उसने उसको एवरेज आउट करने के लिए किया है. तो एवरेज आउट करने से आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन इट पॉसिबल. अभी देखिए अगर आपने कोई चीज़ 550 में ली है, सपोज यू टेकन 550 में 100 क्वांटिटी. ओके, इसको छोड़ दीजिए, ऊपर जो भी आ रहा है उसको. 550 में कोई 100 क्वांटिटी लिया और अगर आपने 500 में फिर से 100 ले ली तो आपके टोटल क्वांटिटी हो गए 200. लेकिन आपकी एवरेज बाइंग जो है ना वो 525 हो गई. आप समझ रहे हो? दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन व्हाट इज एवरेज आउट. एवरेजिंग यानी आपने 2 बार एंट्री ली, एक बार जब वो 500 पे था, एक बार जब वो 550 पे था. अभी 550 पे आपने ली हुई चीज में आपको जब 500 गई तो 50 रुपए का नुकसान हो रहा था. 500 में और आपने उठा लिया तो आपकी एवरेज बाइंग 200 क्वांटिटी की 525 हो गई. अदरवाइज अलग अलग क्या थी, 550 में 100 और 500 में 100. तो 200 कितने में आई? 525 में. दिस इज सिंपल. दिस टू द पीपल डू टेंड टू डू इट एज इफ दैट विल बी द फार्मूला. बट फ्लैट फॉल है, इसको तो आपको सिर्फ हेज करके ही कुछ हो सकता है. हेजिंग का मतलब ही पुट के ट्रेड के सारे बैठो और उसी ट्रेड के पुट को लेके बैठ जाओ. अगर एसबीआई फॉल हो रहा है तो एसबीआई का पुट लेके बैठो, और अगर आप एसबीआई में इन्वेस्टेड हो तो उसके अगेंस्ट पुट लेके बैठो. तो कुछ हद तक आपकी कोई गिरावट को काबू आ जाएगा जैसे. बट क्या होता है कि व्हेन द फॉल इज वेरी हैवी, वो भी आपको कोई बहुत बड़ा फायदा देने वाला नहीं है. ऑप्शन चेन आप देख लीजिए, वहां पर भी क्लियर आपको बहुत अच्छे से पता लग जाता है. देखिए इसने क्या किया, आज तो होल्ड कर रहा है. ये बैंक निफ्टी का लो क्या था 37,062 मीन्स उसने फिर से रिवर्स मारा है. यहाँ 37,000 को गिरने से बचा रहा है. तो कब तक बचाएगा? द बिगर क्वेश्चन इज दैट. नो ट्रेंड विल चेंज. पूरा दिन ऐसे ही रहा है, आगे भी कल भी ऐसे ही रहेगा. अब कितने दिन रहेगा वो नो आइडिया. इलेक्शंस इंडिया में चल रहे हैं. देन कोरोना इज द ओनली प्लस थिंग विच इज लिटिल वीक. और अब कोरोना को लेके पीपल आर आल्सो नॉट वेरी सीरियस. दे नो कि कोरोना जो है इट इज गोइंग टू स्टे फॉर ईयर्स नाउ. ओनली थिंग इज द
virus is luckily not that dangerous as Delta virus was. Omicron is not even in the news. What is in the news? You can see the world level news. Only news is Ukraine tension, Ukraine tension, Ukraine tension. That's it. कोई न्यूज नहीं है और जियो पोलिटिकल टेंशन. अब ये मेडअप है क्या है, बट ब्रांड का जितना ऊपर जाएगा उतना इंडिया के लिए बहुत प्रॉब्लम है. इंडिया को महंगा पड़ेगा क्रूड एंड मार्केट को तो नुकसान होना ही है इसका. देयर इज अनफॉर्चुनेटली नो रिलीफ. हम 5 राज्य के चुनाव के बीच में भी हैं, तो बजट भी हो चुका है. तो वेयर इज द पॉजिटिव न्यूज? ओनली पॉजिटिव न्यूज इफ एट ऑल कैन हैपन, दैट कैन कम फ्रॉम रशिया स्पेसिफिकली. इफ रशिया से रिवर्सेस इटसेल्फ, कैसे होगा आई हैव नो क्लू. मुझे तो अब, बिकॉज क्या होता है जब ये इस तरह के सिनेरियोस होते हैं तो अनसर्टनिटी ज़्यादा होती है, उसमें नुकसान सबका हो रहा है. अब यूक्रेन की प्रॉब्लम का नुकसान पूरी दुनिया को भुगतने के लिए. यूक्रेन तो बड़ा ही देश है ना, छोटा देश तो है. तो अभी अगर हम देखते हैं लेटेस्ट ऑन तो इसके बारे में डिप्लोमेसी के द्वारा कोशिश कर रहे हैं, कुछ फायदा नहीं है. रशिया कुड इन्वेड एनी डे, यूएसए इज वार्निंग एवरी नाउ एंड देन. तो President Biden spoke with Putin, warned that US and its ally will respond. US Secretary of State Blinken said no one should be surprised if Russia instigate a provocation within its users to justify military action. Multiple countries have urged their citizens to leave the यूक्रेन एज ए. अब यूक्रेन जो है उसकी तो मुसीबत ही हो गई है. वो कभी रशिया का भाग हुआ करता था, तो फिर बाद में उसने, जब रशिया यूएसएसआर हुआ करता था तो यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ इट. बाद में डिसइंटीग्रेशन हुई, उसके बाद फिर उसमें प्रो और एंटी रशिया लीडर्स आते रहे. रशिया डज नॉट वांट यूक्रेन टू बी पार्ट ऑफ नेटो. नेटो का एक रूल है, देखिए आप, जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है ये, वो यूएसए को बोल रहे हैं मुझे मिलिट्री सपोर्ट दो. क्या कर लोगे उससे? अब यूक्रेन मीटिंग करवाना चाहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप. यूक्रेन यूरोप की तरफ देख रहा है. जो बाइडेन क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा रशिया पे सैंक्शन लगेगा. रशिया को भी समझ में आना चाहिए कि ये क्यों ये कर रहा है. इसमें दुनिया पहले ही परेशान है. मैं इन सब की वजह चाइना को मानता हूँ. चाइना दुनिया की 70% प्रोडक्शन करता है प्रोडक्ट्स की, और उसका नाजायज फायदा उठा रहा है. रशिया को फाइनेंशियल असिस्टेंस चाइना दे रहा है. वो चाइना जिसे रशिया कभी कुछ समझता ही नहीं था. आज चाइना रशिया से ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मिलिटरीली रशिया के पास बहुत कुछ है. तो रशिया को इकोनॉमिकल सपोर्ट चाइना से आ रही है, इसलिए रशिया और पुतिन ये जो भी एडवेंचर कर रहे हैं, इस लड़ाई की जिम्मेदारी पुतिन पे है. ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी डिजास्टर हैपनिंग. देखिए 600 की तरफ जाते हुए, एज आई टोल्ड यू, मार्केट इज फॉलिंग वेरी बैडली नाउ, फ्रॉम बैड टू वर्स.
अगेन फॉल इज हैपनिंग। इसका मतलब साफ है कोई रिलीफ नहीं होगा। ये हफ्ते का पहला दिन है। And unfortunately there is no holiday in this entire month. ऐसा भी नहीं है कि ये देखिए 37,340 if you recollect I told you it may touch 600 and then it's almost at 592. So I have the experience to tell you what I say with a conviction. आपको मेरे साथ जुड़ना है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के द्वारा मेरे साथ जुड़िए। देखिए मैक्सिमम कॉल्स चलेंगे मेरे से 440 हो गया। देखिए ये बहुत बुरी तरह निफ्टी गिरते हुए 500 पॉइंट। बैंक निफ्टी मैंने बोला था आज ही 37,000 तोड़ेगा, अब आप देख लेना। मैंने इसीलिए आपको 37,300 के लिए बोला था। मार्केट वीक है हर घड़ी। अब मार्केट का ये हाल है कि हर पल की न्यूज़ पे वो चलेगी। मेरी समझ के परे कि चीन इतनी एक्सपेंशनिज्म थ्योरी पे बिलीव कर रहा है कि उसको लग रहा है कि दुनिया कुछ नहीं कर सकती। 70% सप्लाई उसके थ्रू होती है हर चीज की। कुछ हुआ तो रशिया को आगे करेगा। बिना लड़ाई जंग को जीतने की तैयारी है ये। वेरी सैड। रशिया चाइना इन सब देशों में कोई डेमोक्रेसी नहीं होती, तो वहां लोगों की भी कोई सुनी जाती नहीं है। वहां डिक्टेटर होते हैं। एक गलती पूरी दुनिया में आग लगा सकती है, ये उसका क्लासिक केस है। इंडिया जैसी कंट्री को जब तक चारों तरफ पीस ना हो तो इकोनॉमिकल प्रोग्रेस होने में दिक्कत आती है, तो इसकी वजह से हम भी पिसेंगे। देखिए कैसे आपका ट्रेड 37,300 की पुट इज नियरिंग दैट, ऑलमोस्ट देयर, ऑलमोस्ट 400 एज आई 600 एज आई टोल्ड। Look, 600 touched because 37,000 is going to get broken, and I think it is broken. It touched 37,000. Very bad sign for the market. 37,000 टूट चुका है। Inevitable fall. I don't know how these falls are going to get वेरी बैड फॉर द मार्केट। 623 आप देखिए कैसे बढ़ा है ये, आप यू कैन सी है। लुक एट द पुट राइजिंग, बियर्स आर डांसिंग। कंप्लीट बियर मार्केट हो गया अब ये। This has become a 100 point trade, 17,300 put, simply because 17,000 लेवल टूटने के अलावा 16,900 भी टूटता हुआ। इधर 37,000 टूटता हुआ, सब तरफ डेटा वीक है, आप देख लो।
कोई सपोर्ट एरिया नहीं बनता है, सीधा अगला सपोर्ट 500 पॉइंट में आएगा। 500 पॉइंट में सपोर्ट आएगा, मीन्स यहाँ से सीधा फटा तो गए 500 पॉइंट। जिसने फ्राइडे को पुट लिया होगा उसने तो लाखों कमा लिए होंगे। गिरती मार्केट में इंडेक्स ट्रेडिंग से यू कैन अर्न लैक्स, and I mean it. When there is no confusion on a rise or a fall, you earn heavily in market. Range bound market में it is next to impossible to earn. But when a market is in a specific direction, whether up or down, you earn heavily. You see the chart of the day. It clearly explains कि सबसे पहले गैप डाउन होता है और खुलने के बाद भी गिरती है मार्केट। खुलने के 5-6 मिनट में ही मार्केट बहुत जोर से गिर के थोड़ी रिकवरी करती है और फिर साइड ऑन करते करते किस तरह होल्ड करती है 2 बजे तक। बट 2 बजे के बाद देखिए आप, 2 बजे के बाद फॉल होने की सीधी वजह है यूरोप का फॉल। ये देखिए यूएसए, यूरोप, एवरीवेयर इज हेवी सेलिंग एज इफ क्या कर सकते हैं, can't do anything. I feel very sad for our nation because India needs not only economic stability but also fast growth, because कोरोना की वजह से पहले ही मार पड़ी हुई है। ये सब बहुत ही प्लान्ड वे मुझे दिख रही है चाइना की। We all can at least do one thing, is to avoid buying Chinese products. Because I am of the opinion कि this was planned very well some few years back कि how they are going to do this, because उन्होंने पहले एक वायरस को वर्ल्ड की मार्केट मतलब वर्ल्ड में लाए, उस वायरस को अच्छी तरह फैलाया गया, लाखों लोग मर गए, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं। तो इससे साबित होता है ये लो इसी से साबित होता है कि this was very well planned in advance by China. Maybe Russia is involved very much there, as China is the back end of what Russia is doing actually. अब ऐसे में आप जिसको बोलते हैं बॉटम फिशिंग, यानी जब नीचे चले जाती है मार्केट तो कई लोग क्या करते हैं, उसको टेम्पटिंग रेट समझ के खरीद लेते हैं, तो वो भी फंस सकते हैं। इस समय तो सब यही सोचेंगे कि मार्केट को और गिरने दो। वन वे सेलिंग है, इट्स ए क्लासिकल वन वे सेलिंग, जहां पर अगर आप बाई साइड में रहोगे तो आप फंसोगे ही। आप सेल साइड में रह के फिर भी एक चांस ले सकते हो। जैसे कि आज पहले ही, जैसे जिन्होंने फ्राइडे में सेलिंग करके कैरी किया, उनके तो आज समझो मार्केट खुलने के बाद भी 5 मिनट के अंदर अंदर और मुनाफा होगा। होता ये है कि आप होल्ड कितना करते हो अपने आप को, इट्स ऑल साइकोलॉजिकली। लाइक मॉर्निंग 2-3 मिनट के अंदर ही 250 पॉइंट का ट्रेड था, मैं तो 80 पॉइंट में आपको समझाते हुए उसको मैंने स्क्वायर ऑफ किया था। अगर मेरा मॉर्निंग का लाइव स्ट्रीम आप देख सकते हैं। उसके बाद हुआ ये कि दिस अलाइस ब्लू का जो
इंटरफेस है, दैट वाज नॉट वर्किंग। व्हाट कैन आई डू? बिना लाइव मार्केट के आपको बताना बड़ा मुश्किल है। उसी वजह से मैंने आपको देखो जब सेकंड हाफ शुरू किया 17,300 के बारे में था सक्सेसफुल, 37,300 फुट सक्सेसफुल। सो जब से मैंने लाइव स्ट्रीम किया आई थिंक 90% ऑफ माई ट्रेड्स गिवन आर सक्सेसफुल। So all I want is to you to get connected with me more and more so that independent रहकर आप भी ये जो मैं कर रहा हूँ आप भी सीखो करो। For anything it requires a lot of experience। खाली वीडियोस किसी के लाइव स्ट्रीम देख के और उसके दिए हुए ट्रेड पे आप सारी उम्र नहीं कमा पाओगे, ये बात आप याद रखिए। सिनेरियोस बदलते रहेंगे, थिंग्स माइट चेंज, so you need to be proactively learning। For learning obviously you need to have to take some sort of a guidance from somebody who's in the market for a very long time or knows the pulse of the market। बिना उसके पॉसिबल ही नहीं है। ये कोई कैसीनो नहीं है जहाँ पर you just come in and just like that you feel like you will earn। That's not going to happen। इसमें psychological aspects बहुत है। There will be scenarios when you will find it very easy, then there will be scenarios when you will be confused। उसको बैलेंस करना is not a kids play। You will require people who are specialized in this। तो वापस अगर आओ तो नो चेंज। 1 2 3 4 आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई, एयू, 4 बैंक तो 4% से नीचे हैं। उसके बाद 1 और 2 बैंक हैं आपके 3.5%। एचडीएफसी बैंक सबसे कम गिरा है, लेकिन वो सबसे कम गिरावट भी 3% है। जैसे इमेजिन ये बैंक्स मिलकर बैंक निफ्टी के इंडेक्स को ड्राइव करते हैं। इंडेक्स हैड gone down till 36,942। वहां से एक इमोशनल सा रिवर्सल आया है, बट देन ज्यादा इफेक्ट नहीं देगा वो। स्टिल इफ यू सी द डेटा, क्योंकि यहाँ सपोर्ट एरिया में 11 लाख का हुआ ही है, तो डेफिनेटली उसको एक चांस बनता है ऊपर जाने का। लेकिन look at where we were on Friday and look at where we are today। huge fall। 1500 पॉइंट्स, 4% मार्केट गिर गया। आज मंडे है, पहले दिन। इट्स नथिंग शॉर्ट ऑफ ए डीप डाउन बियरिश फॉल। और क्या होता है इससे बड़ा? तो प्रॉब्लम यहाँ ही पे खत्म नहीं होती है, प्रॉब्लम तो यहाँ से शुरू होती है। यूक्रेन जो है वो एक एग्रीकल्चरल बेल्ट है फॉर यूरोप। अगर यूक्रेन में अनसर्टेनिटी आती है तो यूरोप को फूड क्राइसिस हो जाएगा, यानी खाने की कमी। और ये सब इलाके ऐसे हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, वहाँ पे कोरोना वायरस भी है। ये सब कुछ प्लान्ड वे से किया हुआ है। एंड इट्स वेरी सैड दैट communist nations like Russia, China are not human in their approach, it looks like, because they are so materialistic for themselves। I think US should do some sort of a sanctioning on Russia। All the diplomats of all the nations should immediately leave Russia। Russia should be stranded alone because रशिया की अपनी आबादी लगभग 14 करोड़ है, लेकिन रशिया अपने आप में कम से कम 100 देशों जितना तो एक देश है। इतना बड़ा उसका साइज है रशिया का। तो मेरे समझ के परे है कि व्हाट एक्सपेंशन इज ही टॉकिंग अबाउट। ही डजंट हैव ए पॉपुलेशन। किसके लिए? भारत के महाराष्ट्र की आबादी पूरे रशिया जितनी है, आप समझ सकते हैं। और महाराष्ट्र का साइज देखिए, रशिया का साइज देखिए। एक रशिया में कम से कम 4 भारत आ जाएंगे। इतना बड़ा होने के बावजूद भी उनको, रशिया इकोनॉमिकली भी इज नॉट ए प्रोग्रेसिव कंट्री एनी मोर। बट उसने जो कुछ किया मिलिट्री इक्विपमेंट सेलिंग करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में, उसको एज है, नो डाउट। अमेरिका इज ओवरऑल
सुपर पावर बिकॉज इट इज इकोनॉमिकली मच मोर। रशिया की तो 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं है, आप सोचिए। इंडियन इकोनॉमी इज ऑलमोस्ट 3 ट्रिलियन प्लस, लेकिन इंडियन पॉपुलेशन इज हुमंगस। हमारे देश की आबादी हमको क्या बोलूं अब। मैं क्या खाऊं? ठंडा। तो आप देख सकते हैं एक बेवकूफ़ी कैसे सबको प्रॉब्लम कर रही है। रशिया, मेरे तो समझ नहीं आ रहा कि इसका सॉल्यूशन आएगा तो कैसे आएगा। ये क्रेमिया करके एक जगह है, उसको भी रशिया ने हड़प लिया था लिटरली। लेकिन यूक्रेन तो काफ़ी बड़ा साइज का देश है। यूक्रेन की गेहूं दुनिया में 9वें नंबर पे यूक्रेन की प्रोडक्शन है गेहूं की। इंडिया की नंबर 2 पे और चाइना की नंबर 1 पे। जस्ट फॉर योर नॉलेज, आई वांटेड टू शेयर दिस सम जनरल नॉलेज अबाउट यूक्रेन को। यूरोप की बास्केट, फूड बास्केट इसीलिए बोलते हैं। आई डोंट नो क्या है ये। अगर रशिया यूक्रेन को इन्वेड नहीं करेगा, इन्वेड लाइक कैसे? आज की इस 21वीं 21st सेंचुरी में ऐसे अजीबो गरीब थॉट्स को लाना। अरे पहले ही कम परेशानियां नहीं है दुनिया में। वेरी 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 सैड। अब भारत के पास खाली ये एक होपफुल सिनेरियो है कि हम खुद एक एग्री बेस्ड इकोनॉमी है। मतलब इकोनॉमी तो एग्री बेस्ड अब नहीं है, लेकिन हम इतना एग्रीकल्चरल ड्रिवन कंट्री है कि हमारा जो भी प्रोडक्शन है, खाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो हमारे देश में है। रशिया में नहीं है ये। रशिया इकोनॉमिकली वीक है, ये सब नहीं है। और वही एक मुझे लॉजिक लग रहा है कि वो यूक्रेन को ओवर पावर करना चाहता है। बट यूक्रेन के लोग भी, जो प्रो रशियन लीडर्स थे, जो अभी के प्राइम प्रेसिडेंट है, उनके पहले जो थे, उनको उन्होंने खदेड़ा था। वहाँ पब्लिक रोड पे आई थी। The only way out is to for the public of Ukraine to come out on streets against Russia, maybe on the borders in as many numbers as possible, and then leave it up to Russia to fire at them. It is not possible. इसको ऐसे ही करना पड़ेगा अक्रॉस यूएस, यूरोप। एंटी रशियन प्रोटेस्ट होने ही पड़ेंगे। रशिया हैज टू बी boycotted on this one because China is playing a smart game. Why not involve in itself directly but indirectly? यही चीज चाइना ताइवान में कर देगा। ताइवान के प्लस में ये है कि वो चारों तरफ से समुद्र है वहां पे। आई डोंट नो वेदर ट्रम्प होता तो क्या होता। इवन बाइडन। देखिए अफगानिस्तान से ज्यादा डेंजरस इशू है ये वाला। इन केस अफगानिस्तान, यूएस वाज देयर फॉर मेनी इयर्स एंड इट वाज ए कॉस्टली अफेयर फॉर इट, देन इट मूव्ड आउट ऑफ इट। बाद में फिर से उसको गंदगी के लिए छोड़ दिया। वो अफगानिस्तान कभी भी एक प्रोग्रेसिव कंट्री बन ही नहीं सकता। जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा वो। वहाँ के लोग कभी भी प्रोग्रेस नहीं देख पाएंगे। ये तालिबान और ये सब जब तक है, ये सब चीजें नहीं चलती। हम किस दुनिया में रह रहे हैं यहाँ पर? एक दुनिया एक होकर एक फैमिली के जैसे रहने वाला सिनेरियो होना चाहिए। यहाँ मारा काटी आप कैसे सोच सकते हो? एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमिक डिपेंडेंस होता है जहाँ। वहां पर एक दूसरे को ओवर पावर करने की कोशिशें चल रही हैं। वेरी सैड। भारत को अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने में कितनी मेहनत करी होगी हमारे लोगों ने। उनकी मेहनत बेकार जा सकती है बिकॉज ऑफ these countries like China, specifically China, along with Russia भी। And as it is Russia, China, Pakistan, ईरान, सब बदनाम देश, टर्की, इन सब का आप ये देखिए ना कॉम्बिनेशन। नॉर्थ कोरिया, आई मीन लुक एट आप इससे समझिए। दिस इज द क्लासिक
निफ्टी बैंक का चार्ट क्लियरली क्या बता रहा है आपको कि कैसे आपकी प्रोग्रेशन होते होते फिर वही बैक टू स्क्वायर वन। अगर आप वनडे के चार्ट पे आएंगे तो अक्टूबर ऑनवर्ड्स मार्केट डाउन गया है, वो लेवल कभी वापस आएगा ही नहीं। अब तो वापस बड़ा गैप हो गया है। देखिए आप वापस 30 से अगेन यू कैन सी, हम लोग बात करते रह गए और यहाँ पर जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे फॉल देखिए आप। जस्ट सी द फॉल आफ्टर 2 o'clock, just see the trajectory after 2 o'clock. It's a very clear case of complete bear trend in the market. A put cut trade, PE as we say that, is such a easy cakewalk for you to earn out of. ये 560 के आसपास वाला ट्रेड has zoomed up to 650, 100 plus points just like that. So the investment required for this was 560 into 25. Just for people who are very new, 14,000 रुपए अगर आपने लगाए होते तो आपके 16,000 रुपए बन जाते। 16,500 रुपए अभी तक, 14,000 रुपए के 16,500 बन जाते, बिकॉज ये 560 वाली चीज 660 की तरफ जाते हुए और ये 360 वाली चीज 440 की तरफ जाते हुए, ये तो और भी पैसा बनता। तो इसमें कैसे कैलकुलेशन करते हैं? 360 सिमिलरली this required 18,000 rupees for you to invest and you would have been earning around 23,000. 18,000 के 23,000 आपको कहाँ मिलेंगे? आप मुझे बताओ। ये अर्निंग अपॉर्चुनिटीज कैसे पैदा की जाती है, क्या होता है, ये सब के लिए आई हैव वेरी रिच एक्सपीरियंस ऑफ मार्केट, especially in a market when it is falling. It is much more easy for you because there is a law which says things fall fast then they rise, no? When you climb a staircase you will find it very tough. When you climb down it's much easier. It applies to every walk of life, whether it is trading also. Trading में भी यही होता है, जब राइज होता है तो सब राइज नहीं होते हैं, स्पेसिफिक सेक्टर्स राइज होते हैं। जब फॉल होता है तो सब कुछ गिर जाता है। इट्स लाइक दैट, ओके। तो अभी जैसे अगर हम ये देखना चाहें कि ओवरऑल कोई सेक्टर है जो इसमें कुछ ढंग का कर रहा है, आई डोंट थिंक एनी सेक्टर इज डूइंग एनीथिंग हियर। यू कैन सी इट रादर फ्रॉम हियर। तो ये निफ्टी का इंडेक्स, this will tell you about the entire story. Look at banks 4% down, auto sector 3.5% down, financial services 4% down. Again financial services का part 2 maybe, I don't know, 4% down. You have FMCG 2.5%, IT still relatively less fall, but as a sector 1% down. Media, leave it, doesn't have any this thing weightage. Metal 4.5% down. PSU banks and private bank में PSU banks are 5% plus down because of that SBI news. Pharma relatively less fall. Real estate 4.5% down. So अब भी कुछ नहीं है। So आप ये देखिए इधर it's only ONGC and TCS as gainers, but बाकी सब लूजर ही है। और ये अगर ऐसे आए तो ये मेट्रोपोलिस करके, मेट्रोपोलिस ट्रेड इज फॉलन एज हाई एज 18% डाउन। हिंद कॉपर 8%, LIG हाउसिंग फाइनेंस 7.5%, GMR इंफ्रा 7.5%, इंडिगो 7% प्लस, अशोक लेलैंड 6%। ये सब एक दिन में फॉल है। IBL लाइफ
आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 6 तो हैवी फॉल बोलते हैं इसको. दिस इज अ वेरी 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 हैवी फॉल. एंड मैं आपको वापस बोलता हूँ, दिस इज तो जस्ट स्टार्ट. नाउ टिल दिस टेंशन इज प्रिवेलिंग, वी विल टेस्ट डेली न्यू न्यू लोज. हर दिन ये लोज बनेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ विद माय एक्सपीरियंस. बिकॉज नेगेटिव, हमारे देश की ये गंदी आदत ये भी है कि नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा लोग क्या पकड़ते हैं. तो इसके सपोर्ट एरियाज अगर मैं देखने की भी कोशिश करूँ, अगर निफ्टी बैंक का चार्ट इफ यू कैन पुट दिस वे, यस, एंड वी जस्ट remove this line of averages. All these areas. तो अभी क्लस्टरिंग देखिए कहाँ पर ज़्यादा है. 34,000 के आसपास का जो एरिया है, 34,250 समवेयर, ये आपकी सपोर्ट है, जहाँ एक ठीक ठाक सपोर्ट है. और हम अभी उससे तो काफ़ी ऊपर हैं. बट जो फॉल हो रहे हैं एक एक दिन के, हजार पॉइंट्स के अगर फॉल होते हैं, तो देन इट प्योरली ऑन दैट बेसिस 36,900 पे हम लोग हैं अभी. तो कल क्या होगा, तो कल 36,900 अगर ये लेवल इज समवेयर अराउंड, यहाँ पर है हम लोग अभी. आप ये देखिए, एवरी 500 पॉइंट देयर इज अ सपोर्ट, एवरी 500 पॉइंट देयर इज अ सपोर्ट, बट बीच में कुछ नहीं है. So if it falls tomorrow again, I see tomorrow between 36,000 and 36,500. Then again a 1,000 point fall from there, 35,500 आ जाता है. So this way I am talking about. अब देखिए पुट का जो हिसाब किताब है कि 34,000 की पुट की भी कीमत 28 रुपए चल रहा है, यू कैन इमेजिन. जबकि यहाँ पर यह हाल हो गया है कि 38,700 जो है उसकी कीमत 28 रुपए चल रही है यहाँ कॉल साइड में. 38,700 जो कभी आएगा ही नहीं. आप बैंक्स के परफॉर्मेंस को इंडिविजुअली देखा करो कभी भी. keep a closer eye on these banks. Most of them are part of 90% category contribution weightage wise in the index of bank. Access. So इसमें it is like a family where HDFC Bank is a father, ICICI Bank is a mother, and it's got three children. One is Access, second is Kotak, and third is SBI. तो ये जो फैमिली है, इस फैमिली ट्री को अगर आप समझ लोगे, तो दिस इज 28% प्लस 22% roughly, which makes to 50% HDFC, ICICI, and Kotak, SBI, and Axis together makes roughly 35%. So 85% plus contribution is coming from the 5 banks. बल्कि उससे ज़्यादा ही होगा, 90% होगा इनका कंट्रीब्यूशन रफली इन 5 बैंक्स का. तो इनमें से 3 बैंक्स की डायरेक्शन अगर एक तरफ है, तो आप मान लो कि बैंक उस दिन उसी डायरेक्शन में रहेगा, अप या डाउन. दैट मीन्स इंडेक्स. सो इनकी कॉम्पोजिशन पे इसकी मूवमेंट है. आप इसमें हमेशा फ्यूचर को बाई कर सकते हो, विच इज लाइक बैंक निफ्टी फ्यूचर इज रिफ्लेक्टिंग हेयर लाइक 36,940. व्हेन यू विश टू बाई, it will be bought on 25k multiples में. And suppose if I put a order here, you will come to know what kind of amount is been would be required. Margin requirement आ जाएगा. It's not reflecting. यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट आना चाहिए. इट्स ए कॉस्टली थिंग, मे बी 1 लाख प्लस रहेगा इसका मिनिमम. 1 लाख से ऊपर लगेगा इसमें आपका. इसीलिए लोग जिनके पास पैसे कम रहते हैं, दे गो फॉर ऑप्शन, विच आई गिवन यू राइट नाउ. ऑप्शंस आर मल्टीपल्स ऑफ स्ट्राइक प्राइसेस, जिसके लिए आपको ऑप्शन चेन को समझना जरूरी है. एवरी स्ट्राइक प्राइस हैज ए डिफरेंस ऑफ 100, 35,700 प्लस 100 इज 35,800, माइनस 100 इज 35,600. तो आप शुरुआत देखिए, तो इन्हीं किसी रेंज के आसपास बैंक निफ्टी का वैल्यू
यू विल बी एबल टू सी, ओके। उसको बाई किया जाता है, उसके लिए एक प्रीमियम होता है, दैट प्रीमियम हैज टू बी परचेज्ड इन अ लॉट ऑफ 25 इन बैंक निफ्टी। बहुत ही आसान तरीके से आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, टीच यू, मेक यू लर्न वॉट एवर यू कैन से, so that a person who is watching the channel for the first time at least understands what exactly is this all so much of data about. आपको डेटा को इतना सारा सोचना ही नहीं है, you just have to see expiry is a weekly expiry, monthly expiry, so we go by weekly expiry. हर वीक एक्सपायरी होती है, a week starts from a Friday and ends on a Thursday, so that's why 17 February is the expiry of a weekly agreement. When there is an agreement, when you buy something, it is called as an agreement till you have not closed it. If you have sold something till you have not bought it, तो उन सब कॉन्ट्रैक्ट्स को ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं, OI ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं उसको, सिंपल। तो 12 लाख के आसपास यहाँ पोजीशंस खाली है जिनका अभी तक पूरा सौदा कटा नहीं है। आपने ले रखा है, आपने लेने के बाद उसको वापस बेचना भी होता है, तब जाके कंप्लीशन होती है। तो आपने या तो ले रखा है, आपने यहाँ खरीदा नहीं है या बेचा नहीं है, बस ये है इसका मतलब। जिस पोजीशन पे ज्यादा है तो उस पोजीशन पे अगर इस तरफ ज्यादा है तो उसका मतलब वो एक अड़चन यानी रेजिस्टेंस, और पोजीशन का यहाँ साइड में रहेगा तो सपोर्ट। ऐसे आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि अभी मार्केट जो है अगर बिलो 37,000 है तो इसका मतलब उसने 14,90,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स जो उसको सपोर्ट कर रहे थे वो वीक पड़ रहे हैं। दिस नंबर विल कीप ऑन चेंजिंग, ओके, एंड एज दे गो बिलो द नेक्स्ट बिग सपोर्ट कम्स टू 36,500, ओके। ऐसे देखा जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ओनली बाय डेली getting involved in this one can learn it. There are people who are not even graduates are earning lakhs of rupees through trading. People who are just 12th pass, they can earn. Now it is up to you to believe in the concept of earning. For that आप लोग ट्रेनिंग लीजिए या गाइडेंस लीजिए, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ सीरियस आर यू फॉर अर्निंग। अगर आपको कमाई का एक जरिया, ये मार्केट ही एक ऐसी चीज होती है जो कोरोना के पीक समय में भी कभी बंद नहीं हुई और इवन वॉर्स में भी मार्केट बंद नहीं होती, सबसे बड़ी बात ये है। तो इसमें अगर आप निवेश करके बैठते हैं तो डेफिनेटली आपका अगर जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बहुत गंदा चल रहा है तो बहुत ज़्यादा लॉस होगा और आपको लॉस लेना पड़ेगा। जिनका लंबा नज़रिया रहता है, 10-10 साल तक वो स्टॉक को छोड़ते नहीं है लेने के बाद, ऐसे लोग का नुकसान कम होता है। लेकिन फिर ऐसे लोग जब निवेश या इन्वेस्ट करते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, 15-20 लाख रुपए आपको डालना पड़ेगा, तब जाके कोई रेस्पेक्टेबल रिटर्न आएगा। अदरवाइज अगर आपके पास फंड ही कम है तो आप इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहिए, आपको ट्रेडिंग ही सीखनी चाहिए। अब देखिए, अगर आज पुट का ट्रेड लेके कोई भी बैठा तो क्या दिमाग लगाने की जरूरत है, मुझे आप बताओ ना। कोई दिमाग लगाने की जरूरत है? जिसको ये कन्विंस था, जो बंदा कि फ्राइडे को ही उसने आखिरी क्लोजिंग आवर्स यानी जब मार्केट बंद होता है उसी समय उसने समझ लिया था कि मार्केट बहुत बुरे हाल में रहेगी, या इवन आज 3 बज रहे हैं अभी जैसे, और हमारी लाइव स्ट्रीम को लगभग 40 मिनट होने को आ रहे हैं। तो इस तरह के भी लोग होते हैं, बट देन दैट्स स्पेकुलेटिव काइंड ऑफ ए थिंग। मैं बिलीव करता हूँ सेम डे लेट द मार्केट ओपन एंड देन यू मेक योर मूव। अब इसमें उल्टा भी पड़ सकता है, हो सकता है कल गैप अप हो जाए, बिकॉज देयर इज एक दिन में 1500 पॉइंट गिरा है, कल भी 1500 पॉइंट गिरेगा, तो 2 दिन में 3000 पॉइंट का गिरना बाय नो वे, बिकॉज इतनी सेलिंग होगी तो दैट विल बी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड सिनेरियो। जब ओवर सेलिंग ज्यादा हो जाती है तो फिर बाइंग भी होनी पड़ती है। नॉन स्टॉप कितना बेचोगे बेच बेच के भी, जब सभी बेचने लग जाएंगे तो खरीदेगा कौन, इसका मतलब ये होता है। तो ऐसे में ही बड़े बड़े जो फंड हाउसेस हैं वो इसका फायदा उठाते हैं। इंडेक्स का तो मैं नहीं बोल सकता हूँ कैसे उठाते हैं, लेकिन स्टॉक्स में जरूर ये होता है कि जब बहुत ही ज्यादा अच्छी कंपनी के शेयर्स नीचे आ जाते हैं 30-30, 40-40%, तो एक्चुअली उनको बाइंग करने का बेस्ट समय होता है। लेकिन जब आप उनको बाई करते हो तो फिर आपको
उसी को प्ले करना है। जो बाइंग आपने की है, अगर वो 20-25% रिटर्न देगी तो आपका काम बन जाएगा, यू विल अर्न वेरी गुड, वेरी हैंडसमली। तो ये भी तो ट्रेडिंग ही है। जो लोग कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट, अगर आप कोई ट्रेड के गिरने के बाद उसको ले रहे हो ताकि वो जो गिरा है वो वापस अपनी नॉर्मल लेवल पे पहुंचे, तो वो भी तो ट्रेडिंग है। वो स्विंग ट्रेडिंग कहलाता है, स्विंग कैश ट्रेड बोल सकते हो उसको। इंडेक्स ट्रेडिंग में सेम डे की बात हो रही है, एक ही दिन में, उसमें एक दिन भी नहीं, कई दिन रुकना पड़ेगा। मान लीजिए आज आपका ये कोई भी आप आज उठा लो, वैसे तो सारे ही मरे पड़े हैं। मेट्रोपोलिस, अब ये मेट्रोपोलिस का चार्ट देखते हैं। तो पॉलिस हेल्थ केयर की कंपनी है ये, 2,000 रुपये इसका प्राइस चल रहा है आज, एंड इट इज फॉलन लाइक एनीथिंग, फॉलन लाइक एनीथिंग, एंड इट्स बीन फॉलिंग फॉर सम टाइम नाउ। ओके, तो यानी इसका कोई बहुत बड़ा इशू है, हफ्ते दर हफ्ते गिर रहा है, डे बाय डे इट इज फॉलिंग, मंथ ऑन मंथ इट्स फॉलिंग। तो क्या है मेट्रोपोलिस, इज इट ओके। तो ये एफ का सेगमेंट का ट्रेड है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसके फ्यूचर्स भी हैं ऑप्शन भी है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ, इट इज ट्रेडिंग एट 2,000 रुपीज, यानी कि 2,000। तो ये गिरते गिरते 2,000 पे आया है। अब आप ये देखिए यहाँ पर भी वही, अगर ये यहाँ से भी गिर गया तो इसको ऑप्शन चेन के हिसाब में तो कोई सपोर्ट ही नहीं है नीचे, यानी इसको नीचे को बचाने वाला ही नहीं है। 1900 तक गिरता ही जाएगा ये, अगर यहाँ से गिरता है तो सीधा 1900 तक गिरेगा। और चार्ट में देखेंगे तो भी 1900 के आसपास, और आज इसका लो क्या था देख लेते हैं, 1938। तो 1900 इसकी सपोर्ट है। ये 1900 को तोड़ा तो ये तो लंबे से गिरेगा, एंड इट्स, आई थिंक इट गॉट लिस्टेड समवेयर इन 2019 ओनली, 2019 में आया था ये। तो अब ये अगर किसी ने, समझिए किसी भाई साहब ने यहाँ लिया, इसको 3,000 पे लिया, वो तो अटक गए और लटक भी गए। अब इसको 3,000 को आने में जमाने लग जाएंगे, एक दिन में 17% गिर गया है बॉस। तो ये कोई क्या मालूम है, मीन क्या रिजल्ट अच्छे नहीं आए, गॉड नोस क्या है। देखते हैं भाई, मेट्रो, गूगल बाबा, तो ऐसे आप हो सकता है इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स अच्छे ना आए हो, कंपनी स्पेंड लेस देन मंथ। तो मैं आपको बोलता हूँ इसको देखना है तो screener.in इज ए वेरी गुड साइट, आपको दिखाता हूँ। screener.in, प्लीज रिमेंबर दिस है, screener.in। इसमें आपको पूरी जन्म कुंडली मिल जाएगी, मेट्रो पॉलिस हेल्थ केयर। So what are they? They are engaged in healthcare business, providing pathology related healthcare service. आइडियली तो गिरना नहीं चाहिए, अभी इतना सब कोरोना वरोना वो सब। अब देखिए इसका क्या है, इसकी हाई 3,580 और लो 1,846। जिस तरह से ये चल रहा है ये तो अपने लो पे आ जाएगा। अब दिस आर इट्स चार्ट्स। अब देखो प्रोज और कॉन्स, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट, यानी कि ओवर वैल्यूड स्टॉक है, प्रोमोटर होल्डिंग कम हुई है, कंपनी डेप्ट फ्री थी, कंपनी को अच्छा क्वार्टर का रिजल्ट एक्सपेक्टेड था, कैगर अच्छा है, कैगर होता है क्यूमुलेटिव ग्रोथ। अब देखिए ये देखिए इसके, ये इम्पोर्टेंट है, इसके पिछले 5 साल में 16% का रिटर्न, 3 साल में 16 और इस साल 33, ये करंट ईयर का होता है। Compounded profit growth is, look, this is sales growth, top line, this is bottom line, top line अच्छा है, bottom line अच्छा है, कैगर ठीक है, रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छी है, लेकिन हालत देखो स्टॉक की, मौत पड़ी हुई है इसको, क्यों? तो इस पे प्रमोटर ये देखिए, ये आपको बताएगा, आपको एफआईआई का स्टेक कितना है, एफआईआई का स्टेक ये देखिए, इसका मतलब साफ है, इसमें 30% जो एफआईआई है वो अपना पैसा निकाल दिया उन्होंने, पक्की बात है, और कुछ हो ही नहीं सकते। एफआईआई ने अपना पैसा निकाल लिया होगा, डीआईए की तो
पार्टिसिपेशन भी कम है। देखो एफआईआई की पार्टिसिपेशन 15% से 30% चली गई थी 2 साल के अंदर। सो स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट डेटा एंड अंडरस्टैंडिंग द डेटा। देखिए कितना सब कुछ तो अवेलेबल है, आपको क्या और चाहिए? दुनिया भर के रेशियोज, कितना पढ़ोगे भाई? आपको पढ़ के पहले समझ में आने लायक चीजें पढ़नी पड़ेगी। ये तो किसी मतलब ये तो किसी को भी समझ में आ जाना है चीज, टॉप लाइन बॉटम लाइन, कैगर क्या होता है। हो गया तेरा कैगर इज व्हाट? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, compound annual growth rate. So that would be rate of return that will be required for an investment to grow from its beginning balance to its ending. ठीक है ना, मैं यहीं पे ही आपको डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ। So the CAGR is annualized average rate of revenue growth. Revenue growth between two given years. इसका एक ये देखिए इतना बड़ा फॉर्मूला है इसका। बिगनिंग वैल्यू, फाइनल वैल्यू और नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर आ जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो इससे ये देखो मैथमेटिकल फॉर्मूले है, ये इसका इंटरप्रिटेशन है। अगर आप इसको ये ऐसे देख सकते हैं, ऐसे इस तरह से बैंक भी जाना पड़ेगा भाई। दिस इज हाउ दे हैव एक्सप्लेन्ड इन द एक्सेल फॉर्मेट। कैगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, ओके? So coming back to this, well, there is no stopping of the fall. Metropolis तो बुरी तरह गिरता हुआ, छोड़ दीजिए इसको। ये देखिए बाकी फॉल ही फॉल है इनफैक्ट। मोर फॉल हैपनिंग, 36,900 फूट गया अभी। बैंक निफ्टी का आप हाल देख लो ऑन मिनट वाला चार्ट। आप 2 बजे के बाद से देखिए, 2 बजे के बाद आप ये देखिए 37,298 से ट्राई एंड एक्सप्लेन बस 37,295 से हम आ गए हैं सीधा 36,800 पे। आप अंदाजा लगाइए, दिस इज फॉल ऑफ 500 पॉइंट्स इन ए स्पैन ऑफ 1 आवर। 1 घंटे में 500 पॉइंट और गया आपका मार्केट। ये 360 वाली चीज 480 हो गई है, 560 वाली चीज 700 रुपए के आसपास होती है। लुक एट द अमाउंट यू कुड हैव मेड आउट ऑफ इट। आप अर्न कैसे कर सकते हो एक गिरती हुई बाजार में जहां कोई भी सेक्टर नहीं टिका। एवरी सेक्टर हैज फॉलन, एवरी सेक्टर हैज फॉलन। तो फ्रेंड्स आई थिंक दैट्स एनफ फॉर द डे। मैंने सुबह एक छोटा स्ट्रीम किया था, बट अनफॉर्चुनेटली एलाइज ब्लू एज ए interface is really not doing very well. I'm very surprised because इसको मैं 2019 onwards I've been using it. I've never had any problems, but पिछले 1 हफ्ते में 3 बार प्रॉब्लम आ चुका है इसमें already, which is a very bad sign. You should have an interface or a broker whose softwares should not give any glitch, because एक important every damn minute is an important service. तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ या बता रहा हूँ आपको कि there is absolutely no support for बैंक निफ्टी। every 500 पॉइंट्स के इंटरवल पे जो भी सपोर्ट आएगा, and exactly that is going to happen, exactly that is going to happen, and it is happening. Okay, so I think I have shown you enough on this today's stream, and I'm hopeful that you are liking the stream. Please subscribe the channel without any second delay, bell icon दबाओ so that you can get the notification. Generally I do it twice a day, but more importantly, morning stream is the very most important stream. We should never ever miss. Okay,
Thanks for the participation. Take care and bye bye.